As far as the shootout that took place outside actor Disha Patni's residence, this was her residence in Bareilly in Uttar Pradesh. Well, we have the latest CCTV footage that has emerged of the shooters. This is the latest CCTV footage that has emerged showing the shooters on a motorcycle opening fire outside Disha Patni's residence. But before that, these are visuals of them getting petrol filled. As we can see, this is the latest that we have for you at the moment on the shooters. This is them getting fuel filled. They are continuing to be on the run. From what we hear is there are 3 accused in the case that were seen at the Bareilly petrol pump. This is the footage that has been accessed by NDTV. There was another CCTV footage that had surfaced yesterday showing 2 shooters on a motorcycle opening fire outside the residence in Bareilly. Well, one of the men pulls out a gun and fires multiple rounds, and from what we heard today is that there were 25 to 30 rounds of bullets that were fired. That is what the police is saying, and 2 people have died in an encounter that took place between the police and the ones responsible for the attack on the actor's residence in Bareilly. There was this encounter that took place in Ghaziabad, and the police have, divulged with details saying that there were 25 to 30 rounds that were fired right outside the residence. The big question being, of course, it is a Goldi Barar gang that has taken responsibility on social media site right after the incident that took place on the 12th of September. What is the motive being the biggest question? But this is the latest footage that we have of them getting fuel filled from a petrol station in Bareilly, and NDTV is the first to access this footage. Well, we have Mukesh, my colleague, joining us to get us more on this breaking news. Mukesh, these are the attackers responsible for the shootout outside the actor's residence. And we have this latest footage showing that they were getting fuel filled from a petrol station not too far away. देखिए, बिल्कुल जो यूपी पुलिस है उसकी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक 11 सितंबर को बरेली में गोल्डी बराड़ और रोहित गुजारा के 5 शूटर पहुंचे थे, लेकिन एक शूटर जो नाबालिग था उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो वापस चला गया था। लेकिन जो फुटेज हमें मिला है, ये फुटेज है 11 सितंबर का, जब शूटर बरेली के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने गए थे, और वहाँ पर जो फुटेज मिला है उसमें दिखाई दे रहा है कि रविंदर नाम का जो शूटर है वो इसमें नहीं है, लेकिन जो अरुण है, नकुल है, विजय है, इसके अलावा एक नाबालिग शूटर है, ये सभी वहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये 2 बाइक पर सवार होकर गए थे। एक बाइक अपाचे है और दूसरी बाइक स्प्लेंडर है, जो कि फुटेज में दिखाई दे रही है। इसके अलावा फुटेज में एक शख्स और दिख रहा है जो कि पेट्रोल भरने वाला है। तो कुल 5 लोग इसमें दिख रहे हैं, जिसमें 4 शूटर हैं और 5वां पेट्रोल पंप भरने वाला है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के पहले 2 बार रेकी की थी। एक रेकी की थी 11 सितंबर को और दूसरी रेकी की थी 12 सितंबर को। पुलिस ने जो फुटेज मिले हैं फायरिंग का या उसके पहले का या उसके बाद के जो फुटेज मिले हैं, उनके बेसिस पर जो शूटर हैं उनको आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद सभी की पहचान करने के बाद पुलिस को ये जानकारी मिली कि कल रात में 2 शूटर रविंदर और अरुण दिल्ली में सोनिया विहार के इसी रास्ते से आने वाले हैं, और यहीं पर पुलिस ने ट्रैप लगाया हुआ था। जब पुलिस ने दोनों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस का दावा यह है कि दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, और जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। करीब 20 से 21 राउंड ये फायरिंग हुई है, और उसके बाद 2 शूटर रविंदर और अरुण मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक गोल्डी बराड़ और रोहित गुजारा का ये प्लान था कि वो दिशा पाटनी के बरेली के घर में फायरिंग करवाएं, जिससे कि उत्तर प्रदेश में दहशत फैले। इसीलिए 5 शूटर वहां पर भेजे गए थे, और 5 में से एक शूटर जो नाबालिग था, जो जुवेनाइल था, उसकी तबीयत खराब होने के चलते वो वापस लौट आया था। लेकिन अब जो पुलिस है वो बाकी बचे 3 शूटरों नकुल, विजय और एक नाबालिग की तलाश कर रही है। यहाँ पर जो एनकाउंटर हुआ है उसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हरियाणा पुलिस की सरकारी गाड़ी में भी कई गोलियां लगी हैं। कुल 20 से 25 राउंड यहाँ पर फायरिंग हुई है, और उसके बाद 2 शूटर रविंदर और अरुण मारे गए हैं, जबकि 3 शूटरों की तलाश लगातार चल रही है। पुलिस के मुताबिक मौके से एक ग्लॉक पिस्टल और एक जिगाना पिस्टल मिली है, और शक इस बात का है कि ये दोनों पिस्टल नेपाल से आए थे। इसके साथ ही जिस अपाचे बाइक का प्रयोग किया गया, वो अपाचे बाइक भी पुलिस ने यहां से बरामद की है। जी।